Our today's class is for 12th. As you know, our subject is geology. Our today's class is causes of earthquakes. In the previous classes, we have discussed earthquakes and their causes. One of the cause was tectonic. Now the second cause is volcanic cause. How due to the eruption of volcanoes, earthquakes occur. So, volcanic earthquakes associated with volcanoes are more localized both in extent of damage and in intensity than tectonic ones. Volcanic earthquakes may be produced due to explosion of volcano, number one. Number two, faulting within the volcano, or by the collapse of the center of volcano. So, by these three activities of a volcano, the volcanic earthquakes occur. So there are two general categories of earthquakes that can occur at a volcano. Those two categories are, number one is volcano tectonic earthquake. Number second is long period earthquake. What is volcano tectonic earthquake? Volcano tectonic earthquake is a type of earthquake that is produced by stress changes. Basically, stress changes inside the volcano in solid rocks due to the injection or withdrawal of magma, or we can say injection or ejection of magma or molten rock material, that are called volcano-tectonic earthquakes. So I will repeat again. Those earthquakes which are produced by stress changes in solid rocks, and these stress changes depend upon, or we can say they can be due to the injection or withdrawal of molten rocks, molten material or magma. That is called, or that those are called volcano-tectonic earthquakes. So next is long period earthquakes. What are these long period earthquakes? These long period earthquakes are produced by the injection, when the magma or lava goes into surrounding rocks or into the cracks or vents of surrounding rocks which are there. These earthquakes are basically a result of pressure changes during the unsteady transport of magma. So, due to unsteady transport of magma, especially in oceans, injection of magma takes place into the surrounding rocks, and due to pressure changes, earthquakes happen. Those are known as long period earthquakes. If we try to understand again, these volcanic earthquakes are cause of earthquakes as a volcanic cause. बेसिकली वॉल्केनिक कॉज क्या होता है? ऐसे वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स जो ताल्लुक रखते हैं उन वॉल्केनोज से, वो ज़्यादा लोकलाइज, या कहेंगे दोनों तरीकों में हम कहेंगे, जैसे अगर हम बात करेंगे किस हद तक नुकसान हुआ है अर्थक्वेक की वजह से, या किस हद तक इंटेंसिटी जो अर्थक्वेक की है, जो चेंज आ चुकी है इस अर्थक्वेक की वजह से, इसके दबाव की वजह से, या कितनी तेज़ी से, कितनी रेक्टर स्केल पे इसका कितना मैग्नीट्यूड है, कितना ज़्यादा होगा या कितना ज़्यादा डैमेज होगा, वो सिर्फ डिपेंड करता है जो लोकल एरिया में जो जितना ज़्यादा वो उसका वो अंदाज़ा सिर्फ हमें दिखेगा उस लोकल एरिया में जहाँ पे ये वॉल्केनो एरप्शन हो रहा है।
यानी हम दूसरे लफ्जों में इस तरह भी कहेंगे कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स को जब हम कंपेयर करेंगे वॉल्केनिक अर्थक्वेक के साथ, वॉल्केनिक अर्थक्वेक से हमें ये उस लोकल एरिया से ही पता चलता है कि कितनी इंटेंसिटी और कितना डैमेज इस वॉल्केनो ने किया है। जो इसके इर्द गिर्द लोकलिटी में इलाका है या हिस्सा एरिया है, उसमें ज़्यादा इंटेंसिटी और डैमेज के बारे में हमें पता चलेगा एज कंपेयर टू टेक्टोनिक वन्स, जो टेक्टोनिक वन्स में हमें पता नहीं चलता है। वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं 3 चीज़ों से। जैसे अगर हम बात करेंगे एक्सप्लोजन ऑफ वॉल्केनो, एक वॉल्केनो है, जब ये वॉल्केनो निकलता है इसके नीचे से मैग्मा चेंबर होता है, जिस मैग्मा चेंबर से ये ऊपर पूरा जो मैग्मा चेंबर होता है इस वेंट क्रेटर से निकलता है। कभी कभार क्या हो जाता है, यहाँ खोखलापन हो जाता है, खाली जगह हो जाती है लावा की वजह से, और ऊपर जो दबाव स्ट्रेस जो इस एरिया का माउंटेन, पूरे माउंटेन का या एरिया का स्ट्रेस जो रहता है, एकदम इसकी क्या हो जाती है, सब्सिडेंस हो जाती है। या कभी कभार क्या हो जाता है, वॉल्केनो इरप्शन, कंटिन्यूस इरप्शन की वजह से जब लावा पूरा बाहर निकल जाता है तो ये खाली हो जाता है, और कभी कभी धमाके हो जाते हैं, एक्सप्लोजन हो जाता है, पूरा का पूरा फट जाता है, और इस क्रेटर के बजाय जो विद इन 1 किलोमीटर डायमीटर होता है, ये इट टेक्स द डायमीटर ऑफ किलोमीटर्स, इट कैन बी 10 किलोमीटर, जिसको हम बाद में कैलिडेरा का नाम देते हैं उस वेंट को, जो जितना ज़्यादा बड़ा गड्ढा बन जाएगा एक्सप्लोजन की वजह से, जब फट जाएगा पूरा एरिया इसमें डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। इसी तरह से जब बात करेंगे फॉल्टिंग विद इन द वॉल्केनो, कभी कभी वॉल्केनो के अंदर फॉल्टिंग हो जाती है, एक साइड में एक एरिया या एक पहाड़ होता है, दूसरे साइड में दूसरा, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं या रॉक्स होते हैं, चट्टाने। इन चट्टानों की एक साइड में जब वॉल्केनो, ये जो मैग्मा चेंबर होता है, ये खाली हो जाता है, इसका जो बहुत बड़ा एरिया इरप्शन की शक्ल में बाहर निकल आ जाता है मैग्मा चेंबर से, चूंकि ये मैग्मा नीचे बहुत मैग्मा होता है, ये जब खाली हो जाता है एक साइड में फॉल्टिंग आ जाती है, नॉर्मल फॉल्टिंग हो जाती है, एक साइड में पूरा का पूरा एरिया नीचे चला जाता है, विद द रिजल्ट फॉल्टिंग टेक्स प्लेस। फॉल्टिंग की वजह से वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स हो जाते हैं। नंबर 3, कोलैप्स ऑफ द सेंटर ऑफ, जो मैंने आपको बताया है, कभी ये जो वॉल्केनो चैम्बर से बाहर, ये मैग्मा चैम्बर से पूरा ये जो मैग्मा है बाहर निकल आ जाता है, फिर ऊपर के एरिया पे दबाव की वजह से, रॉक्स जो होते हैं उनके दबाव की वजह से एकदम ये कोलैप्स हो जाता है पूरा का पूरा। बजाय 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डायमीटर का क्रेटर जो होता है, वो कैलिडेरा में चेंज 10 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स, क्योंकि पूरा का पूरा नीचे कोलैप्स होके दब जाता है। ये 3 एक्टिविटीज है जिनकी वजह से वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स ओकर हो जाते हैं। जनरल कैटेगरीज ऑफ अर्थक्वेक्स मैंने आपको बताया है कि वॉल्केनो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स एंड लॉन्ग पीरियड अर्थक्वेक्स, ये 2 तरह के, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, 2 तरह के अर्थक्वेक्स हो जाते हैं। एक को मैंने बताया ऐसी अर्थक्वेक जो प्रोड्यूस हो जाएगी किस वजह से, स्ट्रेस चेंजेस की वजह से। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैग्मा चेंबर है, यहाँ से इसमें मैग्मा अंदर दाखिल हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है, विद द रिजल्ट यहाँ से इंजेक्ट होने के साथ साथ यहाँ मैग्मा और लावा, जिसको हम कहते हैं मैग्मा, बाहर निकलता है, या ऑटोमेटिकली विड्रा हो जाता है मैग्मा, मॉल्टन रॉक्स बाहर निकलते हैं, यहाँ खोखलापन हो जाता है, विद द रिजल्ट ये जो यहाँ का एरिया है एकदम नीचे चला जाता है, फॉल्टिंग इसमें हो जाती है, या प्रेशर चेंजेस की वजह से जो अमल इसमें हो जाती है, प्रेशर चेंजेस की वजह से इंजेक्शन या विथड्रॉल ऑफ लावा, उसको हम वॉल्केनो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स कहते हैं, चाहे इंजेक्ट हो या इजेक्ट हो।
या बाहर निकले, सराउंडिंग रॉक्स में फिर दाखिल हो जाए, उसको हम वोल्केनोटेक्टोनिक अर्थक्वेक्स कहते हैं। लॉन्ग पीरियड अर्थक्वेक्स क्या होती है, ये भी प्रोड्यूस हो जाती है बाय द इंजेक्शन ऑफ, ये जो पहली पोजीशन है जहां पे लॉक्ड है, यहाँ पे जब ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से यहाँ पे सब्सिडेंस हो जाती है, इसी एरिया को यहाँ पे सब्सिडेंस, यहाँ स्लिपनेस आती है, इस स्लिपनेस की यहाँ अपलिफ्टमेंट हो जाती है, और सोनामीज की वजह यहाँ सोनामीज क्रिएट हो जाते हैं आफ्टर वॉल्केनो। ये वॉल्केनो से पहले, ये अर्थक्वेक से पहले की पोजीशन है। जब अर्थक्वेक आ जाती है, यहाँ स्लिपेज हो जाती है, तो क्या हो जाता है, यहाँ सोनामीज आती है इस ओशन में विद आफ्टर ड्यू टू द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से। यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिकली यहाँ प्रेशर चेंजेस की वजह से अनस्टेडी ट्रांसपोर्ट जो हो जाता है मैग्मा का, अनस्टेडी ट्रांसपोर्ट जो यानी स्टेबल नहीं रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे चला जाता है, विद द रिजल्ट स्लिपेज ऑफ दिस फॉल्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर चेंज, due to unsteady transport of magma, with the result earthquakes occur, and these type of long period earthquakes. So this was regarding the volcanic cause of earthquakes.